Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and I hope you have done translation of lesson number 3. So now we are going to do the exercise of lesson number 3 and you have to do all the parts of this exercise with the help of pen on your reading book in a very neat and tidy way. And your diary is you have to learn all the part of these exercises. Okay. So let's start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. The first part of exercise which we are going to discuss that is countable and uncountable noun. इससे पहले वाले जो बात हैं वो हम नोटबुक पर करेंगे सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडिंग इन दिस वीडियो. तो हम इस वीडियो में से वही जो पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे जिनको रीडिंग बुक पर करना ज़रूरी है. नोटबुक का काम जो है वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला. सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द first part which is related to the countable nouns and uncountable noun. So let's see the definition of countable and uncountable noun. So there is a definition of countable noun and there is a definition of uncountable noun. Countable nouns are the names of thing, person that can be counted. For example, child, cow, book, pen, etc. यानी ऐसी तमाम चीज़ों या लोगों के नाम जिनको आप काउंट कर सकते हो. These are come under the umbrella of countable nouns. और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, एक ऐसे चीज़ों के नाम, ऐसे लोगों के नाम, मतलब जैसे लोग तो नहीं कह सकते आप, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. दिस कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एयर, यू कांट काउंट द एयर. वाटर, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं बट यू कांट काउंट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर. गैस, salt. So these all are the examples of countable nouns and uncountable noun. Countable nouns ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो. और अनकाउंटेबल्स ऐसी नेम्स ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजों के नाम होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो. नाउ कम टुवर्ड्स द इट्स पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. सो हेयर एट द पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 के ऊपर ही उसकी डेफिनेशन है और पेज नंबर 32 के ऊपर ही इसकी एक्सरसाइज है. पार्ट ए, read the statement, classify the following nouns into countable and uncountable noun. Sand, bag, sugar, dust, box, ship, oil, medicine, bale and milk. ये हमारे पास जो है countable और uncountable nouns का mixture है. So we have to differentiate the countable nouns here and uncountable noun here. ठीक है. So box, it's a countable, bale, ship and medicine. And which are the uncountable nouns from this section? Sugar, dust, milk and oil. ये these are the things which cannot be counted. Sugar के जो particles हैं you can't be counted. Dust के particles को आप count नहीं कर सकते. Milk के drops को आप count नहीं कर सकते and you can't count the drops of oil. So this is the list of countable noun and this is the list of uncountable noun. So after the countable and uncountable noun, we have the next part of our exercise. It's about the adverb of frequency. So what is the adverb? Adverb is a word which modify the verb, which modify your action. Adverb हमें बताता है कि हमारा जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कितनी दफ़ा हो रहा है. ठीक है, वो you can say adverb of frequency, adverb of time, adverb of place. So there are the different adverbs, but we will discuss only the adverb of frequency here. So I gave you some little bit introduction about the adverb of frequency. एडवर्ब का बारे में बताया. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नाउ कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो पार्ट बी, पिक आउट एंड राइट काउंट. पार्ट बी विल बी नॉट इंक्लूडेड इन योर एक्सरसाइज. ठीक है, हमने पार्ट बी को नहीं करना. अब इट इज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन समथिंग अकर्स इज और इज डन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई भी जो काम है, कोई भी जो एक्शन है वो कितनी दफा हुआ है. ठीक है, समथिंग, हाउ ऑफन, कितनी दफा. ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी दफा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें इस बात का जवाब देता है कि कोई भी जो काम है, हाउ ऑफन इट इज हैपनिंग, वो कितनी दफा हो रहा है. मतलब ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, कभी कभार, नेवर, कभी भी नहीं, सेल्डम,
सेल्डम कहते हैं बहुत कम कम, रेयरली तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर कहते हैं, ठीक है। यूजुअली, अगेन, बार बार, जनरली, फ्रिक्वेंटली, यानी ये वो आंसर्स हैं कि कोई भी काम कितनी दफा होता है। सो हम ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स हैं, हम इसको जो क्या कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुछ काम जो होते हैं वो हमेशा उनके साथ ऑलवेज लगता है, जैसे मुस्लिम ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अजहा विद द डिवोशन। अब यहाँ पर ऑलवेज के अलावा ऑलवेज ही आएगा, यहाँ पर नेवर, रेयरली कभी नहीं आ सकता। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमने वहां पर किस तरह का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाना है। वो हमारी सेंटेंस की जो सिचुएशन होगी वो हमें बताएगी कि वहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा आएगा, ऑलवेज आएगा, ऑफन आएगा, नेवर आएगा, सेल्डम आएगा, रेयरली आएगा। किस तरह का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लगाना चाह रहे हैं, इट विल डिपेंड अपॉन आवर सेंटेंस सिचुएशन। ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार, मतलब 10 में से 1 टाइम्स यहाँ पर आता है। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो मतलब कभी कभार गलतियां कर देती है। सो ये जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, इसमें हम बताते हैं कि कोई भी काम कितनी दफा हो रहा है। सो वी इन द नेक्स्ट वी हैव अ लिस्ट जो हमें ये बता रही है कि हमने जो है वो कौन सा काम कितने % में करना है और हमने कहाँ पे क्या लगाना है। जैसे ऑलवेज, कोई भी काम अगर आप 100% शो करना चाह रहे हो, ये काम 100% हो रहा है, तो हम वहां पर ऑलवेज यूज करेंगे। इफ यू वांट टू शो द 90%, द यूजुअली वर्ड वहां पर यूज होता है। 80% के लिए जनरली का वर्ड यूज होता है कि हाँ ज्यादातर ये काम हो रहा है। नॉर्मली कोई भी जो चीज होती है वो जनरली उसको कहते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता जा रहा है, काम करने के जो टाइम्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। ऑफन 70%, आई यूज टू ऑफन टेक वॉक्स अलोंग विद द रोड, यानी ये मैं कभी कभार, ये ऑफन कभी कभार में आ जाता है। 50% के लिए हम समटाइम्स यूज करते हैं। 30% के लिए ओकेजनली, यानी आप कभी बहुत कम की तरफ आते जा रहे हो। सेल्डम, अगर आप कोई काम 15% करते हो 100 में से, तो आप उसके लिए सेल्डम का वर्ड यूज करोगे। अगर आप कोई काम 100 में से जस्ट ओनली 5% करते हो, तो रेयरली, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, ढूंढने से भी मुश्किल से कोई चीज मिले, तो उसके लिए हम रेयरली का वर्ड यूज करते हैं। ही रेयरली मेक्स अ मिस्टेक, यानी वो बहुत कम गलतियां करता है। और नेवर का मतलब होता है 0%, वो काम आपने कभी भी नहीं किया। आई नेवर फॉरगेट अ फेस, यानी मैं किसी चेहरे को कभी भी नहीं भूलता। सो हेयर इज अ लिस्ट, और यहाँ पर परसेंटेज है, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि आपका जो, आपने किस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है, ठीक है। अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि आप वो काम हमेशा करते हो, तो यू विल यूज ऑलवेज। 90% के लिए यूजुअली, 80% के लिए जनरली, 70% के लिए ऑफन, 50% के लिए समटाइम्स, 30% के लिए ओकेजनली, 15% के लिए सेल्डम, 5% के लिए रेयरली, एंड 0% के लिए नेवर, यानी वो जो काम आपने कभी भी नहीं किया होता। नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। So, part C, at the page number 33, read the statement. Fill in the blanks with the appropriate adverb of frequency from the given list. We have the list, this, rarely, always, sometimes, usually, regularly. अब जो यहाँ पर हम adverb of frequency यूज करने जा रहे हैं वो जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी आपके लिए वो काम, आप वहां पर ऑलवेज का वर्ड भी यूज करना चाहोगे तो यहाँ पे यूजुअली यूज हुआ हुआ है। सो कहीं ना कहीं आकर आप जो कर सकते हो, अपनी चॉइस के मुताबिक वहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा सकते हो। बट इन सम सेंटेंसेस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वहां पर सिर्फ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। जैसे माई आंट इज डैश इन अ ग्रेट हरी, यूजुअली यहाँ पे आप ऑलवेज भी लगा सकते हो कि मेरी जो आंट है वो हमेशा हरी में होते हैं, उनको हमेशा बहुत जल्दी होती है आंटी को। सो यहाँ पे ऑलवेज भी आ सकता है, यूजुअली भी आ सकता है। माई फादर डैश टेक्स अस आउट फॉर डिनर, यहाँ पे समटाइम्स लगा हुआ है, आप समटाइम्स की जगह रेयरली भी लगा सकते हैं। जो कभी कभार जाते हैं 100 में से, मतलब बहुत कम टाइम जाते हैं, रेयरली हम यूज करते थे 100 में से आई थिंक 5% के लिए, तो जो बहुत कम जाते हैं यहाँ पर रेयरली भी यूज कर सकते हैं, बट इट विल बी अ समटाइम्स। अहमद डैश वांट्स टू प्ले क्रिकेट ऑन अ हॉलीडे रेगुलरली, यानी ये यहाँ पर रेगुलरली ही आएगा। माई सिस्टर डैश हेल्प्स मदर इन अ हाउस होल्ड वर्क, यहाँ पर रेयरली है, जिनकी बहनें जो है वो बड़ा फ्रिक्वेंटली मदद करवाती है, वो यहाँ पर समटाइम्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और जिनकी बिल्कुल नहीं करवाती वो वहाँ यहाँ पर रेयरली का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन।
बट द लास्ट सेंटेंस ईद इज डैश अ हैप्पी ओकेजन फॉर अ पुअर पीपल ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज का वर्ड ही यूज होगा, यहाँ पर हम कोई भी अदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं लगा सकते। तो ज्यादातर में क्या होता है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी डिमांड ऐसी होती है कि वहां पर हम हमें ऑलवेज, यूजली, रेयरली ही लगाना पड़ता है, वहां पे हम कोई और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते। सो कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 के ऊपर आपका पार्ट डी है। देयर आर 5 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस पैसेज, अंडरलाइन देम। यानी हमारे पास एक पैराग्राफ है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले से आइडेंटिफाई है। माजिद ऑलवेज रन फास्ट, ऑलवेज जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यू हैव टू अंडरलाइन विद द पेन। सो ही सेल्डम लुक्स राइट एंड लेफ्ट, वो बहुत कम ही इधर दाएं और बाएं देखकर चलता है, यहाँ पर सेल्डम का जो वर्ड है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। He often thinks of participating in a race competition, but he never gets a chance in the school annual sports event. He is usually shy of talking to his physical training teacher. So यहाँ पर often का word जो है you have to underline it. Never is a adverb of frequency and usually is the adverb of frequency. So at the page number 34 we have the next part which is about the punctuation. So what is the punctuation? Punctuation is a process to use conventional signs. क्या किया जाता है कि पंक्चुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक आम से सेंटेंस में हमारे जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं, जो हमारे कन्वेंशन कहते हैं, आम रोजमर्रा के जो हमारे साइंस होते हैं उनको हम यूज करते हैं। एंड व्हाई वी यूज द पंक्चुएशन, व्हाई वी यूज द प्रोसेस ऑफ पंक्चुएशन, या व्हाई वी यूज द पंक्चुएशन मार्क? वी यूज द पंक्चुएशन मार्क बिकॉज it aids to understand the written text and it helps in the correct reading. So that's why we use all these punctuation marks. So before going to do the exercise, we will discuss some little bit punctuation marks. For example, the first is full stop. Why full stop? Full stop is used at the end of the sentence. Question mark use at the end of the an interrogative sentence, यानी कोई भी जो सवालिया निशान होता है उसके लास्ट में हमेशा जो हम एक पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं उसको हम जो है वो क्वेश्चन मार्क कहते हैं। देन कॉमा, एक जो हमने नेचुरल पॉज लेना होता है छोटा सा, उसको कॉमा के लिए यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे आपने शॉक, सरप्राइज या फीलिंग्स या एंगर्स को शो करना होता है। क्विटेशन मार्क वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपने किसी और की बात को कोट करना होता है, किसी और की बात को कहना होता है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसको करते हैं। कॉलन किस लिए यूज करते हैं? यूज टू इंडिकेट व्हाट, किसके लिए यूज होता है? यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो डिफरेंट बातों को दरमियान में हम ब्रेक करने के लिए जो यूज करते हैं उसको कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन किस लिए यूज होता है? यूज द लिंक टू टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो क्लॉजेस को इकट्ठा करने के लिए कि दो अलग अलग बातें हैं बट वी हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम, सो वी यूज द सेमीकोलन की ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, जैसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। अपस्ट्रोफी किस लिए यूज करते हैं? यूज टू शो द पोजेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ वर्ड, किसी चीज के ऊपर जब हमने जोर देना होता है, किसी की मलकियत को जब हमने शो करना होता है ना, वहां पर हम लोग अपस्ट्रोफी का वर्ड यूज करते हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द पंक्चुएशन मार्क. So come towards your exercise. You have to punctuate the dialogue. It's on the page number 34. So here we have the list of names. So आपने क्या करना है, जब भी आपने क्या करना होता है, कोई भी जो नेम होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। So क्या करना है आपने कि जो यहाँ पर तमाम वर्ड्स हैं, जो उनका जो फर्स्ट वर्ड्स है उनको आपने क्या कर देना है, सारा और निम्रा का जो एस है, सारा का एस और निम्रा का एन जो होगा वो कैपिटल आएगा, बिकॉज इट्स अ डायलॉग, और डायलॉग के लिए यहाँ पर हम इस वर्ड को यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉलन को। सो इट्स अ कॉलन। एंड डॉक्टर साइमा, डॉक्टर का डी कैपिटल आएगा एंड सॉरी साइमा का एस भी कैपिटल आएगा। सो सारा, डॉक्टर साइमा हैज बीन ट्राइंग टू कॉल अस ऑल द डे लॉन्ग, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, बात खत्म हो रही है। निम्रा, व्हाट डज शी वांट, तो यहाँ पर व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल आएगा बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सो दैट्स व्हाई वी विल यूज अ क्वेश्चन मार्क। सारा, शी वांट्स टू इनवाइट अस फॉर अ लंच, शी का एस कैपिटल आएगा और लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। निम्रा, when did she come back from the USA, when का W कैपिटल आएगा एंड USA के दरमियान हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप, मतलब डॉट कह सकते हैं, यहाँ पर हम उसको यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। सारा का एस कैपिटल आएगा, लास्ट संडे में लास्ट भी कैपिटल आएगा और एस भी कैपिटल आएगा। निम्रा, निम्रा का जो है हु एल्स विल बी देयर, हु का एच कैपिटल आएगा, क्वेश्चन मार्क है, सो दैट्स वाई वहां पर क्या होगा, लास्ट में भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पर सारा का एस कैपिटल आएगा, अली, हिना एंड फरीदा, अली का ए कैपिटल, हिना का एच कैपिटल, दोनों के दरमियान में कॉमा, एंड
फरीदा का F कैपिटल are also going, full stop. निम्रा, would you go to the lunch? would का W कैपिटल एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. सारा, why not? यहाँ पर सारा जो है she is showing some type of excitement, so that's why we will use the exclamation mark for the last. So it was the your punctuation part.